Good morning, all of you. In today's part, we will discuss about some tricks to learn about the elements present in different groups or the periods in the periodic table, along with some of the basics. First of all, as we already discussed about the periodic table, that the periodic table is divided in the following ways, that is in the period and the groups. In the periodic table, there are the 7 periods and there are 18 groups. So in the 18 groups and the 7 periods, so how will you define the periods? The periods are the horizontal rows. The periods are the horizontal rows. These are 7 in number, while the groups are the vertical columns, and these are 18 in number, and these are 18 in number. Then how can we learn about the elements present in the periodic table? So let's start from the group number 1. In the group number 1, the elements are the hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and the francium. Out of these different elements, the hydrogen is just placed at the top of the periodic table. It is not in the group 1. It is just placed at the top of the periodic table. So the elements of the group number 1, that is the lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium, and to maintain the uniformity in the periodic table, the hydrogen is placed at the top of the periodic table. So the how can we learn the group 1 elements? We can learn the group 1 elements by that simple way, that is the Halina K Rabi Shashi friend. HLI N A से ना हलीना, पोटाशियम के बन गया, RB से रबी, CS से शशि is the name, FR से friend. So how can we easily learn the group 1 of the periodic table? By that simple trick, that is the Halina K Rabi Shashi friend, means hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and the francium. And francium, which is the end element of the group number 1, is the radioactive one. एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है which is the radioactive element in the group number 1, तो आप कहेंगे francium is the radioactive element in the group number 1. नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन आप देखें. आप जानते हैं हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1. अगर आप इसकी रिप्रेजेंटेशन करें तो न्यूक्लियस के बाहर आपकी एक शेल होती है, फर्स्ट शेल के अंदर क्या होती है, एक ही सब शेल होती है. एक कौन, वो सिर्फ s होती है, और s के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है और उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. सो द कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1. अगर उसके बाद हम देखें कि हाइड्रोजन के पास एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम हैज ओनली वन अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, सो द हाइड्रोजन एटम कैन फॉर्म ओनली वन कोवेलेंट बॉन्ड, सो देयर वैलेंसी इज 1. सिमिलरली अगर हम लिथियम देखें जो इसके जस्ट नीचे था, तो देयर एटॉमिक नंबर इज 3, द कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स 1s2, 2s1, 1s2. देखो 1s को जब हमने कंप्लीट किया, क्योंकि जो फर्स्ट शेल है इट हैज ओनली द s सब शेल हैविंग द 1s ऑर्बिटल which can have a maximum of only 2 electrons, so that is the 1s2. Now in the second shell we have the s and p, so the electron will first come in the 2s on the basis of the different rules which we will discuss, which we have already discussed in the chapter of the atomic structure. तो कौन कौन से रूल है जो हम फॉलो करते हैं? अबाउ प्रिंसिपल होता है आपका, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, हंट्स रूल है. बाय यूजिंग दीज 3 रूल्स, दैट इज द अबाउ प्रिंसिपल के अंदर ही एक रूल आ जाता है, दैट इज द बोर्सबरी रूल और द N+L रूल, और उसके साथ फिर हम पढ़ते हैं पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और फिर हम हंट्स रूल ऑफ द मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पढ़ते हैं. तो उन सारी चीजों को, उन सभी तीनों के तीनों रूल्स को हम ध्यान में रखते हुए ही हम कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं. तो जो हमने ये बात बताई कि सबसे पहले 1s में ही इलेक्ट्रॉन क्यों भरे, 2s में पहले क्यों नहीं भरते, तो अबहू जो प्रिंसिपल था उसी ने कहा था कि अकॉर्डिंग टू द अबहू प्रिंसिपल द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज फिल्ड अप इन डिफरेंट शेल, सब शेल एंड द ऑर्बिटल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर द एनर्जी. तो जिसकी एनर्जी सबसे कम है पहले उसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद जिसकी एनर्जी ज्यादा है फिर उसमें, क्योंकि सबसे कम एनर्जी फर्स्ट शेल की होती है, उसके बाद सेकंड शेल में भी 2s की एनर्जी कम होती है, 2p की ज्यादा होती है, इसलिए हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी लिथियम की 1s2 2s1. और फिर पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने कहा था एन ऑर्बिटल कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन. तो आपने देखा 1s के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिलअप किए 1s2, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन को आप हाफ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट है, तो 1 हाफ एरो इन अपवर्ड डायरेक्शन, अदर हाफ एरो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, मींस दैट इज द स्पिन प्लस हाफ एंड द माइनस हाफ जो हम रिप्रेजेंट करते हैं. फिर 2s1, फिर हमने हाफ एरो से 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया. So that is the conjugation of 1s2 to s1. Atomic number is 3. So lithium also have one unpaired electron in the valence shell. Similarly, if we see the other elements of the group number 1,
आफ्टर द हाइड्रोजन एंड लिथियम, दैट इज द सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड द फ्रेंशियम। तो हम कैसे याद करते हैं? सिर्फ जो लास्ट की जो शेल आप बड़े ध्यान से देखें, हाइड्रोजन में क्या थी लास्ट? वैलेंस शेल 1s1 है। आप लिथियम में देखें क्या है? 2s2। सोडियम में आप देखें, रेड कलर से हमने शो किया 3s1। पोटेशियम में जस्ट नीचे क्या है? 4s1। रुबिडियम में क्या आएगा? 5s1। सीजियम में क्या आएगा? 6s1। सीजियम के नीचे फ्रेंशियम में क्या आ जाएगा? 7s1। इस टाइप से। तो ये हमने डायग्राम भी दिखाया, देखो 1s को हमने कंप्लीट होते हुए दिखाया, फिर 2s को दिखा दिया, इंटरमीडिएट हमने डैश 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 लगा दिया कि बीच की भी है आपकी शेल्स, और फिर हमने लास्ट वाले को जो शो किया। तो इस टाइप से हमने शो किया कि आपने क्या देखा यहाँ पे कि आप ग्रुप नंबर 1 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको जो अरेंज किया गया, किस बेसिस के ऊपर किया गया, क्योंकि सभी की वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो ये जो ग्रुप बना था, हमने पहले भी आपको डिस्कस किया था, पहले भी आपको बताया था कि जितने जो 18 ग्रुप्स बनाए गए हैं वो इसी बेसिस के ऊपर बनाए गए हैं कि इन ऑल द ग्रुप्स the valence shell configuration of all the element present in the same group is same। तो जितने भी एलिमेंट एक ही ग्रुप के अंदर, उनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? उनकी बिल्कुल सेम है। तो इस बेसिस के ऊपर आपके 18 ग्रुप्स आपके बना दिए गए, फ्रेम कर दिए गए हैं। तो ये हमने देखा आपके ग्रुप नंबर 1 के बारे में। तो जो ग्रुप नंबर 1 है उसके अंदर क्या है? लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने देखा किस में एंटर कर रहा था? इन द लास्ट इलेक्ट्रॉन। आप दोबारा से देख लें, द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द एस सब शेल, वेदर इट इज द हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और द सीजियम। द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द एस सब शेल। एस सब शेल के अंदर आपके एंटर करता है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं? इन ऑल द ग्रुप 1 एलिमेंट्स, hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium in the francium, the last electron enters into the s subshell। So the group 1 elements are the s block element। आपसे पूछा जा सकता है why the group 1 element are the s block element? तो आप आंसर क्या देंगे? The group 1 element are the s block element because in all these elements the last electron enters into the s subshell। So that is about the group 1 element। और group 1 की कुछ और प्रॉपर्टी हम देखें तो वो क्या कि what is the general electronic configuration of the group 1 element? That is the ns1। ns1 means आपकी जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, तो जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज हो जाती है, बट द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस एस सब शेल दैट रिमेन 1। सो द कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स ns1। हाइड्रोजन में जैसे 1s1, लिथियम में लास्ट में क्या आएगा? 1s2, एंड सो ऑन, जैसे अभी हमने आपको बताया था। नेक्स्ट अगर आप देखें जितने भी ग्रुप 1 एलिमेंट है, इनकी वैलेंस शेल में क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, अभी हमने डायग्रामेटिकली भी आपको बताया था, which can be lost easily to acquire the group 18 like fulfilled stable configuration। ग्रुप 1 एलिमेंट जो है वो ग्रुप, देखो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे जो स्टेबल ग्रुप है वो आपका ग्रुप नंबर 18 है। Why the group 18 elements are the most stable group elements? Because they have the fulfilled stable configuration। तो एलिमेंट कौन है उसके अंदर? अगर आप उसके अंदर एलिमेंट देखेंगे तो आपके सबसे पहले एलिमेंट बोलो यहाँ पे कौन आता है? हीलियम आ जाता है, देखो यहाँ पे हीलियम। उसके बाद बोलो यहाँ पे कौन आता है? नियोन। फिर उसके बाद आता है आर्गन। फिर कौन आता है? बोलो क्रिप्टॉन। फिर कौन आता है? जीनोन। फिर कौन आता है आपका लास्ट में? रेडोन, दैट इज द रेडियोएक्टिव। तो इसका एटॉमिक नंबर बोलो कितना है? 2 है। नियोन का बोलो कितना है? 10 है। आर्गन का कितना है? 18 है। क्रिप्टॉन का कितना है? 36 है। जीनोन का कितना है? 54 है। और रेडोन का कितना हो गया? 86। हर एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का ये चाहता है कि मैं भी ग्रुप नंबर 18 जैसा हो जाऊं। ग्रुप 18 जैसा होने के लिए क्या करेंगे ये एलिमेंट? दे कैन इधर लूज द इलेक्ट्रॉन और दे कैन गेन द इलेक्ट्रॉन और दे कैन शेयर द इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी कोई भी जो एलिमेंट है, जो बचे हुए एलिमेंट है ग्रुप 18 को छोड़ के, ऑल दीज एलिमेंट वांट टू एक्वायर द ग्रुप 18 लाइक कॉन्फिगरेशन either by losing the electron or gaining the electron or by sharing the electron। कोई भी वे वो अपनाएंगे लेकिन ग्रुप 18 जैसा होना चाहेंगे। जैसे मैंने अभी बताया ग्रुप 1 के बारे में, ग्रुप 1 एलिमेंट क्या करेंगे? आपके लिथियम को देखें, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1, अभी हमने पढ़ा था। तो ये क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, तो बोलो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते ही साथ लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 है वो किस जैसा हो जाएगा? उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। किस जैसा? हीलियम जैसा। हो गया ना ग्रुप 18 जैसा। तो सोडियम को देखें, एटॉमिक नंबर 11 है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो कितना हो जाएगा? 10। नियोन जैसा हो जाएगा, ग्रुप 18 जैसा हो जाएगा। पोटेशियम 19, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो 18 मींस आर्गन जैसा हो जाएगा। रुबिडियम एटॉमिक नंबर 37, वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो क्रिप्टॉन जैसा हो जाएगा। सीजियम जिसका एटॉमिक नंबर 55 हो, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे 54 मींस वो जीनोन जैसा हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो यही तो हमने लिखा है कि द ग्रुप 1 एलिमेंट कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन क्यों लूज कर सकते हैं? आराम से आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे द ग्रुप 1 एलिमेंट कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन इजीली
because after losing one electron they acquire the group 18 like fulfilled stable configuration. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो ग्रुप 1 एलिमेंट है इनको हम एल्कली मेटल्स भी कहते हैं. व्हाई दे कॉल्ड एज द एल्कली मेटल? बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर टू गिव द एल्कली और यू कैन से द हाइड्रोक्साइड. जैसे आप देखें लिथियम प्लस वाटर के बीच देखो रिएक्शन हुई. अभी हमने पहले ही आपको बताया तो आपके जो लिथियम है वो क्या करेगा, वो ग्रुप 18 जैसा होना चाहता है. क्या करेगा ग्रुप 18 जैसा होने के लिए? एटॉमिक नंबर 3 एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा. तो हमने देखो नीचे क्या शो किया, देखो लिथियम Li पॉजिटिव प्लस में एक इलेक्ट्रॉन देखो इसने लूज किया. उसके बाद वाटर है आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है तो इसके अंदर रहते ही हैं 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर. 1 लीटर वाटर के अंदर 10 रेज टू द पावर -7 H पॉजिटिव आयन होते हैं और 10 रेज टू द पावर -7 ही क्या होते हैं? OH नेगेटिव आयन. बिकॉज व्हेन द वाटर गेट डिसोसिएट इट गिव्स द सेम मोल्स ऑफ H पॉजिटिव एंड द OH नेगेटिव आयन. So now what will happen? Now the H positive ion which is lost by the water it will gain the electron. देखो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा. तो क्या बनेगा? H positive will take the electron to form the H. These H will combine with each other to form the hydrogen gas. हाइड्रोजन गैस बन जाएगी. और ये Li पॉजिटिव किसके साथ कंबाइन करेगा? क्योंकि Li पॉजिटिव है, नेगेटिव के साथ. नेगेटिव कौन है? OH नेगेटिव. टू फॉर्म द LiOH. तो मींस LiOH बन गए तो LiOH हाइड्रोक्साइड बन गए तो ये क्या कहलाए? ये एल्कली बन गए. नाउ दे कैन इजीली लूज द OH नेगेटिव आयन. लिथियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग आपका बेस है, ये OH नेगेटिव आयन लॉस करेगा तो इसलिए इनको एल्कली मेटल कहते हैं. सिमिलरली लिथियम की जगह अगर हम सोडियम ले लेते तो भी वही काम होता. Na पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन वो लूज करता. पोटेशियम लेते तो K पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन लूज करता. तो इन ईच केस द हाइड्रोक्साइड विल बी फॉर्म्ड which can easily give the OH negative ion in the aqueous solution. So they are basic in nature, so they are alkali in nature. तो जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स होते हैं they are called as the alkali metals because they react with water to give the hydroxides in the aqueous solution. Means they will further lose the OH negative ion in the solution becomes the basic or you can say the alkali. और इसलिए हम इनको alkali metals भी कह देते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड एज द रघु एलिमेंट. व्हाई इट इज कॉल्ड एज द रघु एलिमेंट? बिकॉज इट हैज नो प्रॉपर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल. as we already tell you कि the hydrogen is just placed at the top of the periodic table to maintain the uniformity in the periodic table. So hydrogen is called as the Raghu element because the hydrogen atom shows the property both like that of the group number 1 and also like the group number 17. Group number 17 के जो एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी हम आगे देखने वाले हैं ये उनकी तरह क्या करते हैं? ये उनकी तरह एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे. हमने आपको बताया था ना कि जो ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट है वो सबसे स्टेबल है. तो हर कोई चाहता है मैं ग्रुप नंबर 18 जैसा हो जाऊं. तो हाइड्रोजन भी क्या करेगा? हाइड्रोजन भी ग्रुप 18 जैसा होने के लिए दो तरीके से स्टेबल हो सकता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके या गेन करके. मींस द हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड एज द रघु एलिमेंट बिकॉज इट कैन स्टेबलाइज ईदर बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन लाइक द ग्रुप नंबर 1. अभी हमने पढ़ा था ग्रुप 1 की तरह ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दें जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर्स द कॉन्फिगरेशन दैट इज द 1s0. मींस वो उसके पास अभी इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, वो स्टेबल हो गया. मींस हाइड्रोजन की कॉन्फिगरेशन पहले 1s1 थी. इफ इट इज लूज वन इलेक्ट्रॉन लाइक द ग्रुप नंबर 1 इट एक्वायर्स द 1s0 कॉन्फिगरेशन. simultaneously it can gain one electron like the group number 17 element. अगर हाइड्रोजन वन इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो मींस क्या बन जाएगा? H नेगेटिव जिसे हाइड्राइड आयन कहते हैं, H पॉजिटिव जिसे आप प्रोटॉन कहते हैं. तो if it gain one electron it acquires the 1s2 configuration like the, बोलो किसकी तरह इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया? ग्रुप 17 का काम क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे? ये ग्रुप 18 जैसा होने के लिए क्या करेंगे? दे विल गेन वन इलेक्ट्रॉन. तो हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. किसकी तरह? ग्रुप 17 की तरह. हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. किसकी तरह कर रहा है? ग्रुप नंबर 1 की तरह. मींस जो हाइड्रोजन एक रघु एलिमेंट इसलिए है बिकॉज इट कैन stabilize both by losing one electron like the group 1 and by gaining one electron like the group number 17. But there are some properties in which it differs both from group number 1 and the 17. आपके जो हाइड्रोजन है लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी हैं जिनमें हाइड्रोजन क्या करता है? ग्रुप 1 से भी डिफर करता है, ग्रुप नंबर 17 से भी डिफर करता है. सो इट इज नीदर प्लेस्ड इन ग्रुप नंबर 1 नॉर इन ग्रुप नंबर 17. So it has no fixed position in the periodic table. So to maintain the uniformity in the periodic table, it is just placed at the top of the periodic table. हाइड्रोजन को just at the top of the periodic table के ऊपर रखा गया है, ना कि ग्रुप 1 के अंदर, ना ही ग्रुप नंबर 17 के अंदर. तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे. So it is also called as a रघु एलिमेंट. चोर एलिमेंट है. रघु का मतलब चोर. चोर का मतलब उसकी कोई पोजीशन नहीं मिल पा रही उसको, ना पीरियोडिक टेबल के अंदर कहीं पे भी, ना ग्रुप 1 के अंदर मिली, ना ग्रुप नंबर 17 के अंदर मिली.
तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसके बाद के जितने भी जो एलिमेंट है इनके एटॉमिक नंबर हम कैसे याद करते हैं। तो बड़े ध्यान से देखें, फर्स्ट जो एलिमेंट हमने रखा टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी इन द पीरियोडिक टेबल, जो ग्रुप नंबर 1 के अंदर में टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल के अंदर जो रख दिया हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर 1 है। नेक्स्ट को आप देखें लिथियम, बोलो गैप कितने का है हाइड्रोजन लिथियम के बीच, 2 का गैप है। तो आप साइड में देखें, देखो हमने वहां पे 2 लिख दिया, देखो 2 हाइड्रोजन लिथियम के लेफ्ट साइड में 2 लिख दिया। अब आप बताएं लिथियम और सोडियम के बीच में गैप कितना है एटॉमिक नंबर्स के बीच, 8 का गैप है, तो देखो हमने 8 लिख दिया। And what is the gap between the atomic number of sodium and the potassium? That is the 8. Next, what is the gap between the atomic number of potassium and the rubidium? That is the 18. Now, what's the gap between the atomic number of rubidium and cesium? That is the 18. Now, what's the gap between the atomic number of cesium and the francium? That is the 32. So that is the very magic number 2, 8, 8, 18, 18, 32. ये गैप आपको हर जगह देखने को मिलेगा, चाहे आपके ग्रुप नंबर 1 हो एंड सो ऑन, कहीं पे भी पर्टिकुलर इसी रेंज के अंदर आपको ये, और इसी जो रिपीटिशन आपकी प्रॉपर्टीज भी ऐसे ही होंगे। सो द रिपीटिशन ऑफ द पीरियड properties of the element after regular intervals in a particular group is called as the periodicity, and these number, that is the 2, 8, 8, 18, 18, 32, these are called as the magic number of electrons कहेंगे आप इसे, क्योंकि मैजिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होता है, मैजिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी होता है, जो बाद में हम डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। तो आपने क्या देखा, ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स को आपने याद कर लिया, हलीना के रवि शशि फ्रेंड, उनका एटॉमिक नंबर कैसे याद करें, अब मैजिक नंबर के बेसिस पे 2, 8, 8, 18, 18, 32। हाइड्रोजन का अगर आपको याद है तो 2 ऐड कर दे, 1 और 2 3 हो गया, 8 ऐड कर दें, 3 + 8 11, 11 में फिर 8 ऐड कर दें 19, 18 ऐड कर दें 37, फिर 18 ऐड कर दें 55, फिर 32 ऐड कर दें 87। तो इस टाइप से आप याद कर लेते हैं इनके एटॉमिक नंबर भी। तो ये हमने देखा ग्रुप नंबर 1 के बारे में। अब हम चलते हैं ग्रुप नंबर 2 के बीच। तो ग्रुप नंबर 2 जो है पीरियोडिक टेबल का, उसमें एलिमेंट आपके कौन से, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड द रेडियम। और इनको याद कैसे करें, याद आप कुछ इस टाइप से करते हैं, बीई से बेटा, एमजी से मांगे, सीए से कार, एसआर से स्कूटर, बीए से बाप, आर ए से राजी कह सकते हैं। तो आपका क्या बन गया बोलो, कि बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, या बाप रोए अगर परेशान है तो आप ये भी कह सकते हैं, लेकिन आप किसी भी तरीके से इसको याद कर सकते हैं। तो दैट इज द वे टू लर्न द ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स को आप इस सीक्वेंस में इस तरीके से याद कर सकते हैं कि बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो उसके बाद फिर से वही आ जाता है कि जो लास्ट एलिमेंट है इन द ग्रुप नंबर 2 आल्सो लाइक द ग्रुप नंबर 1 वेयर द फ्रेंशियम इज द रेडियोएक्टिव एलिमेंट, सिमिलरली इन द ग्रुप नंबर 2 द लास्ट एलिमेंट दैट इज द रेडियम, इट इज अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट, ये एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। फिर हम उसी टाइप से देखें कि इनकी वैलेंस कॉन्फिगरेशन क्या है। तो अगर आप बेरिलियम की तरफ देखेंगे, एटॉमिक नंबर इज 4, द कॉन्फिगरेशन इज 1s2 2s2। by using the different rules to write the electronic configuration, that is the आपकी Bohr principle, n plus L, that is the Bohrsbury rule, Pauli exclusion principle followed by the Hund's rule. So the configuration of the beryllium becomes the 1s2 2s2 whose atomic number is 4। हमने देखा 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने भरे, उसके बाद 2s के अंदर भरे कौन सा रूल, अबोह प्रिंसिपल। उसके बाद 1s के अंदर ही आपने पहले भरे थे 2s में, बाद में अबोह प्रिंसिपल। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों भरे, क्योंकि 1s के अंदर s सब शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एंड द बोथ इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव द ऑपोजिट स्पिन। दैट स्टेटमेंट इज गिवन बाय द Pauli, that called as the Pauli exclusion principle. Similarly in the 2s the 2 electrons are present with the opposite spin, that is the Pauli exclusion principle। ऐसे आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल अप कर दिया, बोलो कौन से रूल को आपने फॉलो किया था, आप आंसर देंगे Pauli exclusion principle। पहले आपने 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे, उसके बाद 2s को भरे, तो बोलो इसमें कौन सा रूल आपने फॉलो किया, दैट इज द आपका अबोह प्रिंसिपल आपने यूज किया। अभी तक आपके यहाँ पे हंस रूल यूज नहीं किया है हमने। आगे हम चलते हैं, बेरिलियम हैज द 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। आपने 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन बोलो कैसे हो जाएंगे, कि आपके जो 2s के अंदर है ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, बाद में जब हम एक इलेक्ट्रॉन को देखो आगे अगर हम यहाँ पे एक्साइट कर दें, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, देखो एक इलेक्ट्रॉन ये आगे एक्साइट हो सकता है, देखो इस टाइप से एक्साइट हो जाएगा p के अंदर। नाउ द बेरिलियम बिकम्स, बोलो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आफ्टर द एक्साइटेशन इन द एक्साइटेड स्टेट, इट हैज द 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आफ्टर द एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 2s to 2p। 2s से 2p के बीच एनर्जी गैप कम है, so the very less energy gap in between the 2s and the 2p, the 2s electron can easily be excited in the 2p subshell। now the beryllium has becomes the 2 unpaired electron। तो इसलिए जो वैलेंसी आपकी बेरिलियम की वो क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। so it can form the 2 bonds, 2 covalent bond ये बना सकता है। उसके बाद हम अगर बात करें स्टेबिलिटी की, तो बेरिलियम जो है इसकी वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 2 के 2 इलेक्ट्रॉन को ये लॉस भी कर सकता है। और टू एक्वायर द ग्रुप 18 लाइक कॉन्फिगरेशन, बोलो किस जैसी कॉन्फिगरेशन एक्वायर करने के लिए,
ग्रुप 18 लाइक कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस भी कर सकता है। और अगर इसको कोवेलेंट बॉन्ड बनाने हो, जैसे BeF2 BeCl2 बनाना हो, तो उस वक्त क्या करेगा, बेरिलियम 2 बॉन्ड बनाएगा Cl के साथ। कैसे बनाएगा, जैसे अभी हमने आपको बताया था, बाय अनपेयरिंग दीज इलेक्ट्रॉन। जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2s के वैलेंस शेल के, वो आपके अनपेयर्ड हो जाते हैं। तो ओवरऑल हम देखने वाले बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, किसी में भी देखें जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है। बेरिलियम में 2s2 है, तो डाउन द ग्रुप जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती चली जाती हैं। तो बेरिलियम में वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, 2s2। मैग्नीशियम में क्या बन गया, आप रेड कलर से हमने लिखा, आप देख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 आ गया। कैल्शियम में आप देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, देखो फिर से s2 आ गया। लाइक दैट ऑफ अदर एलिमेंट्स, दैट इज स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम अगर आप देखेंगे तो स्ट्रोंशियम में 5s2 आ गया, बेरियम के अंदर 6s2 आ गया, और इसी टाइप से रेडियम में देखेंगे तो 7s2 आ जाएगा। ये हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है आपके ओपन फॉर्म में आपके लिए। बेरियम की कॉन्फ़िगरेशन है ये, जिसमें हमने 1s2 लिखा, 2s2 2p6 भी लिखा, और उसके बाद बीच में डॉट डॉट लगा के बीच की हमने डिफरेंट शेल्स को दिखाया नहीं, उसके बाद हमने वैलेंस शेल को ही दिखा दिया, दैट इज द 6 शेल, दैट इज द 6s2। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आप सभी के अंदर देखें, सभी की वैलेंस शेल में बोलो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी कॉमन कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, कॉमन वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, ns2। बोलो क्या बनेगी आपकी, ns2 इज द वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। कितने इलेक्ट्रॉन ये आराम से लॉस कर सकते हैं, आप ध्यान से देखें। All these electrons, all these elements of the group number 2 element, that is the beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, all have the 2 electron in their valence shell, and they can be lose easily. And after losing these 2 electrons, they acquire the group 18 like configuration. क्योंकि बेरिलियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, एटॉमिक नंबर 4 है, तो इट बिकम्स लाइक दैट ऑफ द हीलियम। अगर मैग्नीशियम whose atomic number is 12, if it loses 2 electron, their configuration like that of the neon whose atomic number is 10. Similarly, the calcium whose atomic number is 20, if it loses the valence 4s electrons, it acquires the group 18 like configuration, that is like that of the argon whose atomic number is 18. Similarly, the other cases. तो अब हम देखेंगे कि जो हमने देखा आपके ग्रुप नंबर 2 के अंदर जो एलिमेंट थे, जिसको हमने लर्न किया, किस ट्रिक से याद किया कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी हमने देखी। तो उसी बेसिस के ऊपर आपके ये कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। व्हाई द ग्रुप 2 एलिमेंट आर आल्सो द s ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आप कहेंगे इन द ग्रुप 2 एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द वैलेंस s सबशेल, सो द ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर द s ब्लॉक एलिमेंट लाइक दैट ऑफ द ग्रुप 1 एलिमेंट्स। In the group 1 element, the last electron enters into the वैलेंस, बोलो किसके अंदर था, s सबशेल। सिमिलरली इन द ग्रुप 2 एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द वैलेंस s सबशेल, सो द ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर आल्सो द s ब्लॉक एलिमेंट्स। और s ब्लॉक के अंदर सिर्फ 2 ही ग्रुप हो सकते हैं, क्योंकि s सबशेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, और एक इलेक्ट्रॉन के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो हम आ ही चुके हैं। ग्रुप 1 के अंदर ns1 था, अब ns2, ns3 तो हो ही नहीं सकता, इसलिए जो s ब्लॉक बन गया ये हमारा, और s ब्लॉक के अंदर 2 ही ग्रुप होते हैं, दैट इज द ग्रुप नंबर 1 एंड द ग्रुप नंबर 2। Next one, what is the valence shell configuration? As we already discussed, the valence shell configuration of the group 2 element, बोलो क्या है, ns2, because all these elements, that is the beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and the radium, all have the 2 electron in the valence s subshell, and these group 2 elements also can lose the 2 electron easily by to acquire the group 18 like configuration, group 18 like fulfilled stable configuration। group 18 जैसी configuration को acquire करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन easily क्या कर सकते हैं, ये लूज कर सकते हैं। तो इसलिए ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे ग्रुप 1 एलिमेंट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो उस पे +1 चार्ज आएगा। ऐसे ग्रुप 2 एलिमेंट अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो इन पे +2 चार्ज आएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ग्रुप 1 एलिमेंट, आप कहेंगे +1। आप ग्रुप 2 के बारे में पूछें व्हाट इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ग्रुप 2 एलिमेंट्स, then you will say the +2 is the common oxidation state. Why the group 1 is the common oxidation state, why the +1 is the common oxidation state for the group 1 element, because they can lose 1 electron easily, and after losing 1 electron they acquire the group 18 like configuration. Why the group 2 element shows the +2 oxidation state, because after losing the valence 2 electrons, valence s 2 electrons, they acquire the group 18 like fulfilled stable configuration, so the group 2 element shows the +2 oxidation state। तो आपके जो s ब्लॉक एलिमेंट है उनकी डेफिनेशन क्या बन गई, वेरी सिंपल डेफिनेशन, द एलिमेंट्स जो भी आपके ग्रुप 1 एलिमेंट हुए या ग्रुप 2 एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द वैलेंस s सबशेल आर कॉल्ड एज द s ब्लॉक एलिमेंट्स, as the s subshell can have a maximum of 2 electrons, so the s block can have only 2 groups, that is the group number 1 and the group number 2। तो इसके बाद जो कॉमन कॉन्फ़िगरेशन अगर आपसे पूछी जाए व्हाट इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द s ब्लॉक, तो आप क्या कहेंगे, ns
1 to 2, ns 1 to 2. So that is the general electronic configuration of the s block. कोई ग्रुप नंबर 1 की पूछे तो ns1, ग्रुप नंबर 2 की पूछी जाए तो ns2, s ब्लॉक की पूछी जाए तो ns 1 to 2. इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे ग्रुप 1 एलिमेंट के बारे में हमने पढ़ा था, ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज द एल्कली मेटल्स. सो सिमिलरली हियर द ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज द एल्कलाइन अर्थ मेटल. एल्कलाइन वर्ड तो आपके ग्रुप 1 जैसा आ गया, अर्थ का मतलब दे आर प्रेजेंट इन द अर्थ. सो these group 2 element are also called as the alkaline earth metal because their oxides are alkaline in nature, because they give the hydroxide in the water and they exist in earth crust, so called as the alkaline earth metal. That is, they are the unaffected by the heat or the fire. ये heat और fire से unaffected रहते हैं, earth crust के अंदर मिलते हैं, तो इसलिए earth metals हैं. और because their oxide are the alkaline, because their oxide in water gives the hydroxides, so they are alkali in nature, so called as the overall called as the alkaline earth metals. तो इसलिए ग्रुप 2 एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल. जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे मैंने मैग्नीशियम का ऑक्साइड लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, when the water is added in the MgO, they give the magnesium hydroxide, which further dissociate to give the OH negative ion. So the substance which give the OH negative ion in the aqueous solution are called the base or the alkali. So they called as the alkaline earth metal, इसलिए हम इनको alkaline earth metal कह देते हैं. नेक्स्ट हम चलते हैं अपने P ब्लॉक की तरफ. पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके जो S ब्लॉक एलिमेंट हैं, they are restricted to the only two groups, that is the group number 1 and the group number 2, while the P block elements, they ranges from group number 13 to group number 18. So the first group of the group P block element, that is the group number 13, where the elements are beryllium, boron, aluminium, gallium, indium and the thallium. Means बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला. B से बैंगन, Al से आलू, Ga से गाजर, In से इन, Tl जो है थैलियम जो है उससे बना थैला. तो क्या बन गया, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला. So that is the trick to learn the group number 13 elements. तो जो आपके ग्रुप नंबर जो 13 एलिमेंट, इसके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि जैसे कि आपके ग्रुप नंबर जो 13 है, इसके अंदर जो गैलियम है, गैलियम इन बोलो किसके अंदर, ग्रुप नंबर 13, एंड द सीजियम इन द ग्रुप नंबर 1. दीज आर टू सच एलिमेंट व्हिच मेल्ट्स ऑन प्लेसिंग इन योर हैंड. आपके अपने हैंड के ऊपर जब आप इन दो एलिमेंट्स को रख देते हैं, आपके ग्रुप नंबर 1 के सीजियम को और ग्रुप नंबर 13 के गैलियम को, दे स्टार्ट मेल्टिंग, वो अपने आप ही मेल्ट हो जाते हैं. तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में काफी बार पूछा गया है और अब भी पूछा जा सकता है. तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से क्लिक करेंगे अपने माइंड के अंदर कि वो कौन से एलिमेंट है, नेम द एलिमेंट व्हिच मेल्ट्स व्हेन दे आर प्लेस्ड ऑन योर हैंड. तो योर आंसर विल बी द सीजियम ऑफ ग्रुप नंबर 1 एंड द गैलियम ऑफ ग्रुप नंबर 13. नेक्स्ट हम चलते हैं ग्रुप नंबर 14 की तरफ. ग्रुप नंबर 14 में एलिमेंट कौन है आपके, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड द लेड. इनको कैसे करें याद, इनको याद करने की ट्रिक ये है, सी से चलो, SI से सीता, GE से जी के, संग, SN से संग, PB से प्रभु. तो सी से कार्बन से चलो बना, SI से सीता, GE जर्मेनियम से जी के, SN से जो आपका टिन से संग बन गया, PB से लेड, प्रभु. तो क्या बना, चलो सीता जी के संग प्रभु, चलो सीता जी के संग प्रभु. So that is the trick to learn the group number 14 elements. Now we will proceed towards the group number 15. These also called as the nicogens, क्योंकि इनकी suffocating nature होता है. ग्रुप नंबर जो 15 के एलिमेंट और इनके जो कंपाउंड्स होते हैं, इनका suffocating nature होता है. So due to their suffocating nature, these called as the nicogens. अब इनमें जो एलिमेंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड द बिस्मिथ. So the trick to learn this group number 15 element is the N से नथु, P से पागल, की, A से आशिकी में सब बिकेंगे. नथु पागल की आशिकी में सब बिकेंगे. तो that is the trick to learn the group number 15. That is the nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and the bismuth. और कुछ देर के बाद, ये तो स्टार्टिंग में ट्रिक होते हैं, उसके बाद आपको इन ट्रिक्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको ये वैसे ही याद हो जाएंगे आप बार बार जब आप इसको रिपीट करेंगे. तो जो ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स है, these all are called as the nicogens due to their suffocating natures. Next हम देखते हैं आपके ग्रुप नंबर 16 elements. The trick to learn this group number 16 element, that is the oxygen, sulfur, selenium, tellurium and the polonium. Polonium here is the radioactive element. So what is the trick behind that? That is the old style से टेपो, O से old, S से style, SE से टेपो. जैसे आप कोई एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम के अंदर आप कुछ टेप रहे हैं, टेपने का मतलब होता है लिखना,
लिखने को ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर हम टेपो भी कह देते, टेप देना। तो हम कैसे याद करेंगे इसको? ओल्ड स्टाइल से टेपो या ऑक्सी स्टाइल से टेपो, आप ऐसा कह सकते हैं। सो दैट इज द ट्रिक बिहाइंड द ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स। नेक्स्ट अब हम चलते हैं ग्रुप नंबर 16 के बारे में कुछ और पॉइंट डिस्कस करने के लिए। तो ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट है, these are also called as the chalcogens because they form ores in the earth crust। अर्थ क्रस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट है जैसे जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, आयरन ऑक्साइड, मीन जो एलिमेंट हैं वो कैसे मिलते हैं? वो आपके ग्रुप नंबर 16 वाले एलिमेंट के साथ कंबाइन करके दे आर प्रेजेंट, दे फॉर्म द ओर। तो मींस ग्रुप नंबर जो 16 एलिमेंट है दे आर आल्सो कॉल्ड एज द चाल्कोजेंस बिकॉज़ दे फॉर्म द ओर इन द अर्थ क्रस्ट। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं ग्रुप नंबर 17 की तरफ। एलिमेंट्स आर दी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड द एस्टेटाइन। एस्टेटाइन दैट इज द लास्ट एलिमेंट इज आल्सो द रेडियोएक्टिव एलिमेंट। अभी तक जो हमने डिस्कस किया है ग्रुप नंबर 1 में लास्ट एलिमेंट रेडियोएक्टिव था, दैट इज द फ्रेंशियम। The last element in group 2, that is the radium, is also radioactive. Like here, the group number 16 last element, that is the polonium, is radioactive. Similarly, in the group number 17, the last element, that is the astatine, 80, is also the radioactive. तो अब इसको हम कैसे याद करें? तो ट्रिक क्या है? ट्रिक इज फिर कल बाजार आई आंटी, फिर कल बाजार आई आंटी, दैट इज द ट्रिक टू लर्न द ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट। एफ से फिर, सीएल से कल, बीआर से बाजार, आई से आई, एटी से आंटी। तो क्या बन गया? ट्रिक क्या है ग्रुप नंबर 17 को लर्न करने के लिए? फिर कल बाजार आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड द एस्टेटाइन। तो जो ग्रुप नंबर 17 है इन्हें हम हेलोजेंस कहते हैं ड्यू टू देयर सॉल्ट फॉर्मिंग नेचर because they form the salt with other elements like NaCl, NaF, NaBr, KCl, KF, these are the salt। तो salt forming जो इनका नेचर है इसीलिए हम इनको हेलोजेंस कह देते हैं। ग्रुप नंबर 17 के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है जो कि आपका लिक्विड है, द नॉन मेटल लिक्विड इज ब्रोमीन। और जो मेटल लिक्विड है वो आपका कौन है? वो मरकरी होता है। वो कौन होता है बोला? आपका मरकरी, जो कि ग्रुप नंबर 12 के अंदर आता है। जिंक, कैडमियम, मरकरी में जब आप देखते हैं Hg, मरकरी जो है वो एक मेटेलिक लिक्विड है। ऐसे ही नॉन मेटल लिक्विड कौन है? ब्रोमीन। लेकिन हम आपको एक चीज और साथ में बता दें, ब्रोमीन जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, जो फ्लोरीन F2 की फॉर्म एग्जिस्ट करता है, F2Cl2 Br2I2 इन द नेचर। तो जो Br2 होता है लेबोरेटरी के अंदर जो हम यूज करते हैं, ये जब भी लैब के अंदर आता है या तो एयर टाइट बोतल के अंदर या कैप्सूल्स के फॉर्म के अंदर भी आता है। और जब हम इसको यूज करते हैं तो जब भी हमें ब्रोमीन को यूज करना पड़े उससे पहले हम इसको आइस कूल्ड कर देते हैं, क्योंकि इसके जो फ्यूम्स होते हैं दे आर वेरी डेंजरस, वेरी हार्मफुल फॉर आवर आईज। हमारे हाथ के ऊपर गिर जाए तो हाथ के ऊपर जो स्किन है उसको भी बर्न कर देते हैं। आईज के अंदर अगर इसके फ्यूम्स चले जाएंगे तो आईज हमारी डैमेज हो सकती हैं। तो इसीलिए ब्रोमीन को जब भी आप लेबोरेटरी के अंदर यूटिलाइज करें, बड़े ही प्रॉपर तरीके से, बहुत ही अच्छे से ग्लव्स पहन के, और प्लस साथ के साथ एक हाइपो सॉल्यूशन जिसे सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन आप कहते हैं, Na2S2O3.5H2O, जो सोडियम थायोसल्फेट है उसका सॉल्यूशन बना के साइड में रखें, क्योंकि वो इसका एंटीडोट होता है। बाई चांस अगर थोड़ा सा आपके हाथ के ऊपर ब्रोमीन टच भी हो जाए तो आप तुरंत अपना हाथ हाइपो सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं, वो उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है, तो उसका एंटीडोट है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके उसके फ्यूम्स को आइज के अंदर जाने देंगे। तो जब भी आप ब्रोमीन को यूज करते हैं, पहली बात उसको बिल्कुल चिल्ड कर देंगे ताकि वेपर्स निकले ही ना। दूसरी बात, ग्लव्स हाथों में पहनेंगे, आपके गूगल्स आईज के ऊपर आप लगा लेंगे ताकि, और गूगल्स भी ऐसे जो आपके आई को बिल्कुल प्रॉपरली आपके बिल्कुल साइड से भी कवर कर दें, ऐसे आपको गूगल्स लेने होते हैं। फ्यूम्स बिल्कुल भी आईज के अंदर नहीं जाने चाहिए। तो मैंने इतनी देर आपको बोला सिर्फ इसलिए, बड़ा ही डेंजरस केमिकल है, बड़ी ही सावधानी से आपको इसको यूज करना है। ब्रोमीन को लेबोरेटरी के अंदर काफी प्रिपरेशन है आपके जिसके अंदर ब्रोमीन को यूज किया जाता है, तो इसलिए इसको बिल्कुल चिल्ड कर देंगे, इसके वेपर्स बिल्कुल भी नहीं निकलने देने हैं, बड़ी सावधानी से आपको इसको यूज करना है। तो इट इज ए नॉन मेटल लिक्विड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके आ जाता है, जैसे आयोडीन सॉलिड होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन आपके गैसेस होती है, आगे हम देखे भी गए। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ग्रुप नंबर 18। उसको हम कैसे याद करें? ग्रुप नंबर 18 में हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड द रेडॉन। रेडॉन इज द रेडियोएक्टिव एलिमेंट हियर। इसको कैसे याद करें? आप ऐसा याद करेंगे, HENE से बना हीना, AR से और, KR से बना करीना का, XE से एक्सरे, RN से बना रंगीन। मींस हीना और करीना का एक्सरे रंगीन, हीना और करीना का एक्सरे
रंगीन. सो दैट इज द ट्रिक बिहाइंड द ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट्स. तो आप ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट्स को इस ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं. हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन मींस हीना और करीना का एक्सरे रंगीन रंगीन. तो इस टाइप से आप ग्रुप नंबर 18 को भी याद कर सकते हैं. तो आपके जो ग्रुप नंबर जो 18 एलिमेंट हैं, आपने क्या देखा अभी तक? ग्रुप 16, 17 और 18 के अंदर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन थे? लाइक द ग्रुप नंबर 1 और 2 में हमने देखा था जो आपके एस ब्लॉक थे, यहाँ पे ये पी ब्लॉक है. पी ब्लॉक के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलो आपके कौन हुए? ग्रुप नंबर 16 में पूछ ले कौन है तो आप कहेंगे पोलोनियम. ग्रुप 17 में आपसे पूछे तो आप कहेंगे एस्टेटाइन. ग्रुप नंबर 18 में पूछा जाए तो आप कहेंगे दैट इज द रेडॉन. सो दीज आर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट. आपसे पूछा जाए कि पी ब्लॉक के अंदर आपके गैसेस कौन कौन है, तो ग्रुप नंबर 18 में अगर सिंपली हम गैसेस की बात करें तो आप क्या कहेंगे? ऑल ग्रुप 18 एलिमेंट आर द गैसेस. हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन जो भी आपकी ये गैसेस हैं. उसके बाद ग्रुप नंबर 17 में देखेंगे तो फ्लोरीन और क्लोरीन जो है F2 और Cl2 दीज आर द गैसेस. ब्रोमीन आपका लिक्विड है, आयोडीन आपका सॉलिड है, जो भी हम बाद में अभी आपको बताने वाले हैं. ग्रुप नंबर 16 में देखेंगे तो O2, सिर्फ ओनली O2 इज द गैस. S8 की फॉर्म एग्जिस्ट करता है सल्फर. S8 इज ए सॉलिड. रिमेनिंग आर ऑल्सो द सॉलिड. ग्रुप नंबर 15 में देखेंगे तो जो नाइट्रोजन है N2 वो आपकी गैस है, और जो रिमेनिंग है वो आपके क्या है? वो आपके P4 दैट इज फास्फोरस P4 की फॉर्म एग्जिस्ट करता है, सॉलिड है. रिमेनिंग आल्सो सॉलिड. और ग्रुप नंबर 13 और 14 की बात करें तो वो भी आपके सॉलिड है. तो ओवरऑल आपने देखा, देखो लिक्विड मैंने अभी आपको बता दिया, ब्रोमीन इज द लिक्विड. और जो गैलियम है, गैलियम ये एक ऐसा सॉलिड है विच गेट मेल्ट्स व्हेन इट इज पुट ऑन द पाम. जब इसको हम हथेली पे रख दें तो ये पिघलना स्टार्ट हो जाता है. सॉलिड कौन है? ऑल रिमेनिंग पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ऊपर वालों को अगर हम छोड़ दें जो मैंने गैसेस बताए और जो लिक्विड बताए, तो बचे हुए कौन है? बचे हुए तो आपके सॉलिड ही हैं. ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? ग्रुप 18 एलिमेंट्स प्रीवियसली कॉल्ड एज द रेयर, आपके इनर्ट गैसेस. पहले हम इनको क्या कहते थे? दे आर कॉल्ड एज द इनर्ट गैसेस. तो आप यहाँ पे वर्ड इनर्ट लिख देंगे. अब यहाँ पे बोलो कौन सा वर्ड कर देंगे? इनर्ट. इनर्ट मींस नो रिएक्शन. why these called as the inert gases previously? Because they have the fulfilled stable configuration, they have no unpaired electron, so they have no tendency to form any type of bond. So due to their no tendency to form any type of bond, their valency is zero. So because their valency is zero, they cannot form any bond. They called as the inert gases. Their valency is zero, so called as the zero valent gases. Because they cannot form any bond, they exist only in monoatomic states, so they called as the monoatomic gases. But now the scientist called as the Neil Bartlett, whose name is Neil Bartlett, it explained that there are some element like the xenon. It can form some compounds like XCF2, XCF4, XCF6, XCO3, XCO2F2 like that. So due to their some कंपाउंड फॉर्मिंग नेचर, अब जो आपके कुछ ग्रुप 18 एलिमेंट ऐसे हैं जो कुछ कंपाउंड बना सकते हैं. सो ड्यू टू दैट nowadays the group 18 elements not called as the inert gases, they are previously called as the inert gases. Nowadays they called as the noble gases. Noble gases means some reactivity, or inert means no reactivity. Inert, noble means some reactivity, inert means no reactivity. Previously हम इनको inert gases कहते थे, लेकिन nowadays we call them as properly as the noble gases due to their some reactive nature like the xenon, जैसे हमने xenon के बारे में बताया. नेक्स्ट हम चलते हैं अपने डी ब्लॉक के अंदर. तो आपने अभी तक एस ब्लॉक देखा, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स को आपने लर्न कर लिया. फिर हमने पी ब्लॉक जो कि ग्रुप नंबर 13 से 18 जो एलिमेंट्स थे उनके एलिमेंट्स को आपने लर्न किया, प्लस साथ के साथ कुछ बेसिक बातें भी हमने पीरियोडिक टेबल की हम देख रहे हैं इन एलिमेंट्स से रिलेटेड. अब हम चलते हैं डी ब्लॉक के अंदर, विच रेंजेस फ्रॉम ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 3 to 12. दे हैव द 10 ग्रुप्स. दे आर रेंजेस फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 to ग्रुप नंबर 12. आपके ये 10 ग्रुप्स बनते हैं. 10 ही क्यों? क्योंकि जो डी ब्लॉक क्यों कहा गया डी ब्लॉक? इसलिए जो डी सबशेल होती है उसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं. 5 ऑर्बिटल्स के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो मैक्सिमम 10 ही ग्रुप हो सकते हैं. तो डी ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम 10 ग्रुप हो सकते हैं. जैसे कि हमने आपको बताया एस ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम 2 ही ग्रुप हो सकते हैं, बिकॉज द एस सबशेल हैज ओनली 1 ऑर्बिटल which can have maximum of 2 electrons. जैसे कि आपके p ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम 6 ही ग्रुप हो सकते हैं. The p block can have a maximum of only 6 group because the s subshell has 3 आपकी orbitals which can have a maximum of 6 electrons. तो इसलिए 6 ही ग्रुप मैक्सिमम हो सकते हैं. Similarly, in the d block element there can be a maximum of 10 groups, ranges from group number 3 to group number 12. तो हम सबसे पहले
आपकी जो सबसे पहली सीरीज है इसकी डी ब्लॉक की, ग्रुप नंबर 3 से 12, पहले हम उसको लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। दैट इज द स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। आपके एटॉमिक नंबर 21 से एटॉमिक नंबर 30 तक है ये फर्स्ट सीरीज। और इसको याद कैसे करें? याद कुछ ऐसे करते हैं, एससी से सचिन तेंदुलकर वेरी गुड, सीआर से क्रिकेटर, सचिन तेंदुलकर वेरी गुड क्रिकेटर, एमएन से मांगे, एफईसीओ इकट्ठा बोलेंगे इसको फीको, एनआईसीयू निकुजन, निकुजन जैसे दंत मंजन होता है, जो टूथपेस्ट होती है हमारी, तो नाम क्या बन गया बोलो? सचिन तेंदुलकर। एससी से सचिन, टीआई से तेंदुलकर, वी से वेरी गुड, सीआर से क्रिकेटर, एमएन से मांगे, एफईसीओ से फिको निकुजन, एनआईसीयू जेडन फिको निकुजन, ये एक दंत मंजन का नाम हमने रख दिया। तो इस तरीके से आप डी ब्लॉक जो एलिमेंट की जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है इसको आप याद कर सकते हैं कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, सचिन तेंदुलकर वेरी गुड क्रिकेटर, मांगे, फिको निकुजन। अब हम इसके बाद चलते हैं कुछ बातों के बारे में जो अभी हमने देखा। आपके जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है इसमें जो आपके 3 एलिमेंट है, दैट इज द ग्रुप नंबर 8, 9 और 10 के अंदर, दैट इज द आयरन, कोबाल्ट, निकिल। इसमें जो प्रीसियस एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टी सबसे मेन है, दैट इज द आयरन वन, सो दिस कॉल्ड एज द फेरस मेटल्स। So these 3 element, that is the iron, cobalt, nickel, these collectively called as the ferrous metal. इनको हम collectively ferrous metal कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, जो यटरबियम से स्टार्ट होती है, वाई से, और चलती कहां तक है? कैडमियम तक। यटरबियम से कैडमियम तक चलती है। तो यटरबियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड द कैडमियम। सो दीज आर द 10 एलिमेंट्स इन द सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। तो इसको हम कैसे याद करें? इसको कुछ ऐसे याद करेंगे, यहां जरूर नींबू मौसमी ट्रक रुक रहा। देखो क्या बना? वाई से यहां, जेड आर से जरूर, एनबी से नींबू, एमओ से मौसमी, टीसी से ट्रक, आर यू से रुक, आर एच से रहा। यहां जरूर नींबू मौसमी ट्रक रुक रहा। आगे पीडी से क्या बना? पंडित, एजी से आगे चल दे। फिर क्या कहा कि यहां जरूर नींबू मौसमी ट्रक रुक रहा, पंडित आगे चल दे, पंडित आगे चल दे। So that is the trick to learn behind the second transition series of the D block element. तो इस टाइप से आप D block element की जो second transition series है उसको आप learn कर सकते हैं। So the main question in the second transition series in the D block, that is very important question, that is about the element whose atomic number is 43, that is the TC, that is the technetium. So that is the synthetic element, that is the synthetic element, that is the radioactive element. तो आपसे पूछा जाए which of the following is the synthetic radioactive element is the D block, तो आप आंसर लिखते हैं technetium। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो आप इसलिए इस चीज को जरूर याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, इसके अंदर आप बड़े ध्यान देंगे। आप यहाँ पे देखो जो आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट भी यहीं से निकल के आते हैं। आपने देखा बेरियम जिसका एटॉमिक नंबर 56 है, आपके ग्रुप नंबर 2 के अंदर देखो जो बेरियम है आपका, उसके आगे नेक्स्ट एलिमेंट देखिए कौन है? लेंथेनम, जो ग्रुप नंबर 3 के अंदर आ गया। उसके नेक्स्ट आप देखें हाफनियम है यहाँ पे, जिसका एटॉमिक नंबर 72 है। तो वेयर आर अदर एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 टू 71? सो दीज एलिमेंट, that series of atomic number 58 to 71, that is separate apart, उसको हमने अलग कर दिया है, and that particular series of 14 element is placed below the periodic table। इस periodic table के नीचे उसको रखेंगे हम, तो वो आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे। उसको हम डिस्कस करेंगे आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करने के बाद। तो आपके जो आपकी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है जिसके अंदर हमने क्या देखा? बेरियम तो आपके ग्रुप 2 एलिमेंट हो गया, आपके लेंथेनम है यहाँ पे, उसके बाद हॉफनियम, टेंटेलम, डब्ल्यू आपका टंगस्टन, रहेनियम, ओएस से ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, और उसके बाद एयू गोल्ड, एचजी मरकरी, जो मैंने आपको बताया था जो मेटल लिक्विड है। अब इनको हम कैसे याद करें? तो क्या है ट्रिक इसको याद करने के लिए? तो देखो ये है हमारी ट्रिक, ला, एल ए से ला, एच एफ टी ए से क्या बना? हफ्ता। जैसे हफ्ता मांगते हैं जो बंदे, जैसे हम पिक्चर्स के अंदर देखते हैं वहां पे जो पर्सन्स होते हैं जो चोरी डकैती करते हैं, जो हफ्ता मांगते हैं कि लाओ मुझे हफ्ता दो, तो मीन्स उसको कहते हैं हफ्ता। जो है एक पर हफ्ते में वहां पे जाते कुछ पैसे मांगते हैं। तो क्या बना? ला हफ्ता वगैरह रे। उसने जाके ये कहा कहीं पे जाके, ला हफ्ता वगैरह रे, कुछ हफ्ता वगैरह दे। तो मीन्स ला हफ्ता वगैरह रे मीन्स एल ए से ला, एच एफ टी ए से हफ्ता,
WRE से वगैरह रे। आगे क्या बनेगा? ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी से उसकी ईरानी पिटाई और होगी। OS से उसकी, IR से ईरानी, PT से पिटाई, AU से और, HG से होगी। तो हमने क्या कहा? ला हफ्ता वगैरह रे उसकी ईरानी पिटाई और होगी, मीन्स उसकी ईरानी तरीके से और पिटाई होगी। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो पहले आपने कैसे याद किया था? सचिन तेंदुलकर वेरी गुड क्रिकेटर, मांगे फीको निको जन। और उसके बाद हमने अपने सेकंड ट्रांजिशन सीरीज को याद किया और उसके बाद हमने थर्ड वन को भी याद कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट हम कुछ बेसिक बातें, जो आपके ग्रुप नंबर 3 से 12 तक के जितने एलिमेंट होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? दिस कॉल्ड एज द ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज। ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, बिकॉज द ग्रुप 1 एंड द ग्रुप 2 एलिमेंट हैव द मेटेलिक नेचर, while the group 13 and the group 18 are the non metallic nature। तो जो मेटेलिक नेचर है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का, जो एस ब्लॉक का, जब एस ब्लॉक से हम पी ब्लॉक की तरफ जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, वी गो फ्रॉम एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक थ्रू डी ब्लॉक। मीन जो करेक्टर चेंज हुआ है आपका एस ब्लॉक से मेटेलिक टू आपके पी ब्लॉक, जो नॉन मेटेलिक करेक्टर जो आपका चेंज हुआ वो किसके थ्रू चेंज हुआ? थ्रू द डी ब्लॉक एलिमेंट, थ्रू द डी ब्लॉक एलिमेंट चेंज हुआ है। तो चेंज हुआ है करेक्टर, सो कॉल्ड एज द ट्रांजिशन, सो कॉल्ड एज द ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। सो दो जो आपके ग्रुप नंबर 3 to 12 है, जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट है, उनको हम ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट इसलिए कहते हैं बिकॉज द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द ग्रुप 1 एंड द 2 चेंजेस टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ ग्रुप 13 to 18 थ्रू दीज एलिमेंट्स, सो दे कॉल्ड एज द ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। आपके जो डी ब्लॉक के अंदर है, जो ग्रुप नंबर 11 को आप देखें, कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर एटॉमिक नंबर 29, सिल्वर एटॉमिक नंबर 47 और गोल्ड एटॉमिक नंबर 79, दिस कॉल्ड एज द क्वाइनेज मेटल। आप कॉपर सिल्वर गोल्ड को आप क्वाइनेज मेटल कहते हैं बिकॉज दे आर यूज्ड इन मेकिंग द कॉइन्स इन द एंशिएंट टाइम, क्योंकि ये एंशिएंट टाइम के अंदर इनके सिक्के बनते थे, इसलिए इनको हम क्वाइनेज मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं आप इन्हें? क्वाइनेज मेटल। नेक्स्ट हम याद करते हैं जो ग्रुप नंबर आपका 8, 9 और 10 देखें, उस ग्रुप नंबर 8, 9 और 10 में आपको याद होगा, मैंने अभी आपको बताया था कुछ पल पहले कि आयरन, कोबाल्ट एंड द निकल, दीज 3 एलिमेंट कॉल्ड एज द फेरस मेटल। इन्हीं 3 एलिमेंट के नीचे, ये तो हो गए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर, ग्रुप नंबर 8, 9 और 10 के अंदर जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसके अंदर ग्रुप नंबर 8, 9 और 10 के जो एलिमेंट है वो कौन थे? आयरन, कोबाल्ट, निकल, दिस कॉल्ड एज द फेरस मेटल। और इन्हीं के नीचे जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो 6 एलिमेंट हैं, दैट इज द रुदेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, RU से रुदेनियम, RS से रोहोडियम, PD से पैलेडियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, OS से ओस्मियम, IR से इरिडियम, PT से प्लेटिनम। These all the 6 element collectively called as the platinum metal, because out of these 6 element the most precious element among them is the platinum, so they called as the platinum metals। तो बोलो आपके फेरस मेटल कौन है? 3 एलिमेंट है, बोलो कौन थे? कौन से थे आपके? आयरन, कोबाल्ट, निकल। आपके आपके प्लेटिनम मेटल्स बोलो कौन है? दिस 6 एलिमेंट collectively called as the platinum metals, that is the ruthenium, rhodium, palladium, osmium, iridium, platinum। इसके बाद जो सिर्फ मेटल लिक्विड है वो कौन है आपका? मरकरी, जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया था। वो कौन सा एलिमेंट है डी ब्लॉक का? विच इज यूज्ड इन द बल्ब फिलामेंट। जो पहले आपके बल्ब आते थे उसके अंदर एक फिलामेंट होता था, पतला सा जो तार होता था क्वाइलिंग की फॉर्म के अंदर, आपने देखा होगा बल्ब के अंदर जो पहले हम यूटिलाइज करते थे। आजकल तो जो CFL ट्यूब वगैरह आप यूज करते थे उससे पहले आपके घरों में अब भी मिल सकता है, आप देख सकते हैं। दैट बल्ब फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, वो टंगस्टन का बना हुआ होता था। वो कौन सा एलिमेंट है डी ब्लॉक के अंदर जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है? दैट इज द ओस्मियम। जो ओस्मियम है उसकी डेंसिटी बोलो क्या है? सबसे ज्यादा है। तो ओस्मियम हैज द मैक्सिमम डेंसिटी and it shows the highest oxidation state in the whole periodic table, that is the +8। पूरी periodic table में सबसे ज्यादा जो oxidation state जो शो करता है वो कौन? that is the +8। ध्यान रखें, that is the highest and the stablest oxidation state। और भी हैं एलिमेंट जो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देंगे, लेकिन वो उनकी स्टेबलेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। +8 शो कर देते हैं लेकिन वो स्टेबलेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाए कि नेम द एलिमेंट विच शोज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, मींस आपको सिर्फ उसी एलिमेंट का नाम लिखना है जो +8 भी दिखा रहा है, हाईएस्ट भी है और स्टेबलेस्ट आपकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज द ओस्मियम। वो ओस्मियम ही है। तो ओस्मियम के बारे में ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। एफ ब्लॉक आपके 4F और 5F ही हैं। देखो हम आपको फिर से याद दिला देते हैं कुछ बातें। देखो वो क्या है।
आपकी जो s सब शेल होती है उसके अंदर देखो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। जो आपकी p सब शेल होती है उसके अंदर आपके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं आपके पास। और जो पहली जो शेल होती है, आपको ये और बता दें, जो पहली जो शेल होती है उसके अंदर सिर्फ s सब शेल होती है। सेकंड जो शेल होती है उसके अंदर दो चीजें होती हैं, 2 सब शेल होती है, s और p। थर्ड शेल जो होती है उसके अंदर बोलो कौन होता है, आपकी 3 सब शेल होती हैं, s p और d। फोर्थ जो शेल होती है उसके अंदर आपके 4 सब शेल होती हैं, s p d एंड द f। इसको आप याद भी कर सकते हैं क्वांटम नंबर्स के अंदर, जैसे आपको बताया जा चुका होता है। तो आपने क्या देखा, f पहली बार किस में आता है, 4 में आता है। उससे पहले f पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ s पॉसिबल होता है, 1s। सेकंड शेल में सिर्फ s और p पॉसिबल है, मींस 2s और 2p ही पॉसिबल है, 2d पॉसिबल ही नहीं है। क्वांटम नंबर के अंदर इसकी रीजनिंग भी दी जाती है। 3 के अंदर आपके 3 ही सब शेल पॉसिबल है, 3s 3p एंड द 3d 3f वहां पे पॉसिबल ही नहीं होता। फोर्थ जो आपका पीरियड है उसके अंदर क्या पॉसिबल है, आपकी फोर्थ शेल में क्या पॉसिबल है, एसपीडी एंड द एफ। मींस जो अभी हम पढ़ने वाले नीचे, जिन्हें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जो ये दो सीरीज नीचे बन गई, बोलो इसका नाम क्या, 4f होगी पहली सीरीज, जिन्हें लेंथेनाइड्स कहेंगे। सिमिलरली सेकंड जो सीरीज होगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे 5f सीरीज, क्योंकि हमने देखा f पहली बार 4 के अंदर ही आता है, फोर्थ शेल के अंदर ही आता है। तो इसलिए जो पहली सीरीज बनेगी एफ ब्लॉक की उसको कहेंगे 4f ब्लॉक एलिमेंट्स, also called as the lanthanides। देखो why they called as the lanthanides, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, आप देखें डी ब्लॉक के अंदर जो लैंथेनम है जिसका एटॉमिक नंबर 57 है, उसके बाद अगला एलिमेंट देखें हॉफनियम आ गया जिसका एटॉमिक नंबर 72 है। तो वेयर दीज एलिमेंट आर प्रेजेंट, दैट इज एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक के एलिमेंट कहां गए, वो ये रहे। ये एक सीरीज है विच कम्स आउट फ्रॉम द ट्रांजिशन सीरीज, ये ट्रांजिशन सीरीज के अंदर से ही निकली हुई सीरीज है, इसीलिए हम इनको इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट भी कह देते हैं। जितने भी आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट की जो ये दो सीरीज हैं, दीज टू सीरीज कॉल्ड एज द इनर ट्रांजिशन सीरीज। और हम एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट भी कह देते हैं बिकॉज दे फॉर्म ए सीरीज विद इन द ट्रांजिशन सीरीज। जो आपकी ट्रांजिशन सीरीज थी, आपकी कौन सी ट्रांजिशन सीरीज, जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज थी, डी ब्लॉक एलिमेंट के जो थर्ड लाइन वाली सीरीज थी, जो सिक्स्थ पीरियड वाली सीरीज थी, वहां से निकल के आई है ये सीरीज। और वहां पे आप देखिए जो एलिमेंट है 58 to 71 जो हमने यहाँ पे नीचे आपके रख दिए हैं, these called as the 4f block elements and also called as the lanthanides because they follow the lanthanum। जो 58 एटॉमिक नंबर है सीरियम, ये बोलो किसके बाद आया, एल लेंथेनम के बाद आया है, जिसका एटॉमिक नंबर 57 है, उसको फॉलो करता है। सो द लेंथेनाइड्स, व्हाई द 4f ब्लॉक एलिमेंट कॉल्ड एज द लेंथेनाइड, they are so called because they follow the lanthanum, because they follow the lanthanum। So how can we learn these 4f block elements, we can learn these 4f block elements, that is the lanthanides, in the following way, means सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमे, मीन सीई से सीता, पीआर से प्रसाद, एनडी से क्या बना एंड, पीएम से पूनम, एसएम से शर्मा, आगे क्या बना ईयू से यूरोप, जीडी से घूमे। गैडोलिनियम पे आपका फिनिश हो गया, सीरियम से गैडोलिनियम तक आपने याद किया कि सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा, सीता प्रसाद एक नाम है एंड और पूनम शर्मा दूसरा नाम है, यूरोप घूमे। जब वो घूम रहे थे तो फिर क्या हुआ, तब टीबी से तब, टर्बियम से तब बना, डिस्प्रोसियम से डायरिया हुआ, होल्मियम से हुआ, तब डायरिया हुआ, तब उनको डायरिया हो गया, और ईआर से और बना, टीएम से तभी यस बैंक लूटा, और जब उनको डायरिया हुआ उसी वक्त यस बैंक लूटा, यस बैंक को किसी ने लूट लिया और तभी यस बैंक लूटा। तो इस टाइप से आप जो 4f ब्लॉक एलिमेंट की जो सीरीज है आप उसको याद कर सकते हैं। इस पूरी सीरीज के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है, बोलो कौन, दैट इज प्रोमीथियम, जिसका एटॉमिक नंबर 61 है, 58, 59, 60, 61, जो एक अकेला रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो कि क्या है, एक अकेला रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 61। ऑल अदर आर दी नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो ये हमने देखा आपके 4f ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हमने याद किया। So the 4f block element also called as a lanthanide because they follow the lanthanum, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उसके बाद हम चलते हैं 7th पीरियड की तरफ। वहां पे आप देखिए बड़े ध्यान से, ग्रुप नंबर सेकंड में आर ए रेडियम है, एटॉमिक नंबर देखो 88। उसके बाद अगला एलिमेंट कौन है, एक्टिनियम, दैट इज द एटॉमिक नंबर 89। 89 के बाद रदरफोर्डियम आ गया, आपका एटॉमिक नंबर 104 है। वेयर अदर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट फ्रॉम द एटॉमिक नंबर 92, 103। These element, that particular series is also present
below the lanthanide series called as the actinides. Similarly, the 4f block element called as the lanthanide because they follow the lanthanum. These 5f block elements, the next series अभी हम लिखने वाले हैं, these called as the actinides because they follow the actinium. Actinium whose atomic number is 89. 89 के बाद ही तो आए हैं 90 से लेके 103 तक, 90 से लेके 103 तक के जो 14 एलिमेंट हैं, they called as the actinides. These are the f block element. और ये भी आपके बोलो कैसे एलिमेंट है, ये एलिमेंट भी आपके इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है, क्योंकि ये सीरीज कहां से निकल के आई, ये भी आपके यहाँ पे 7th पीरियड के अंदर से निकल के आई है. अदरवाइज ये एलिमेंट तो 89 के बाद 90 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो 104 है. तो ये जो एलिमेंट है आपके actinides, why they called as the actinide, why the 5f block element called as the actinide, because they follow the actinium. जो थोरियम से स्टार्ट होते हैं लॉरेंसियम तक है, थोरियम एटॉमिक नंबर 90, लॉरेंसियम एटॉमिक नंबर 103. तो ये जितने भी एलिमेंट हैं, इनमें जो नेचुरल एलिमेंट है, नेचुरल मैं आपको फिर बता रहा हूं, एटॉमिक नंबर 1 से लेके एटॉमिक नंबर 92 जो यूरेनियम है आपका, जो भी आपको दिख रहा है एक्टिनाइड्स के अंदर, तो एटॉमिक नंबर 1 से लेके 92 तक सारे के सारे एलिमेंट आपके नेचुरल हैं, एक्सेप्ट वन डी ब्लॉक के अंदर था, वो एटॉमिक नंबर 43 वाला जो हमने आपको पहले भी बताया था. देखो ये रहा, ये है टेक्नीशियम जो कि सिंथेटिक एलिमेंट है, जो आपका नेचुरल एलिमेंट नहीं है. तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे. उसके बाद नेक्स्ट अब हम आगे बातें करते हैं इनको कैसे याद करें. देखो याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है. यहाँ पे देखो TH से क्या बना, थोड़े, PA से पेरिस, और NP से नेपाल में, PU से पुराने, AM से आम, CM से कम, BK से बिके. देखो हम इतनी लाइन का क्या बन गया, थोड़े पेरिस में थोड़े पेरिस और नेपाल में पुराने आम कम बिके. यानी पेरिस में और नेपाल में आम रखे थे, एक तो जो ताजा आम आपके तोड़े गए थे वो, और एक कुछ पुराने आम भी रखे थे वो कम बिके. तो थोड़े पेरिस और नेपाल में पुराने आम कम बिके. सिर्फ इसे FM मीडिया नहीं ले रहा, जो FM मीडिया है वो इसको नहीं ले रहा, क्योंकि मैक्सिमम आम ये माना गया कि वहां पे जो FM मीडिया वाले हैं वो उन आमों को ज्यादा खरीदते थे पहले, पुराने आमों को, लेकिन अब वो भी नहीं ले रहे. तो सिर्फ इसे FM मीडिया नहीं ले रहा. अब की बार उसे सिर्फ FM मीडिया नहीं ले रहा, और पर्सन तो ले रहे हैं. तो इसीलिए और पर्सन को तो जितने लेने थे मैंगो वो ले लिए, जो बच गए उसको FM मीडिया ने लेना था, उन्होंने लिया नहीं. तो मीन्स हमने कैसे याद किया एक्टिनाइड्स को, थोड़े पेरिस और नेपाल में पुराने आम कम बिके, सिर्फ इसे FM मीडिया नहीं ले रहा. तो इस टाइप से आप जो 5f ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जो एक्टिनाइड्स हैं, आप उनको याद इस टाइप से कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं कुछ आगे, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपको पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से दिखाई दिए. फिर से आपके सामने ग्रुप 1 में कौन है बोलो, फ्रेंशियम. ग्रुप 2 में कौन, रेडियम. बीच में सिंथेटिक एलिमेंट था आपका ये जो रेडियो एक्टिव ही है, टेक्नीशियम. ग्रुप 15 में कौन, 15 के अंदर देखो 2003 में कहा गया कि इट हैज सम रेडियो एक्टिविटी, लेकिन इसके अंदर बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही कम रेडियो एक्टिविटी है. तो आमतौर पे हम बिस्मिथ को रेडियो एक्टिविटी की कैटेगरी में बहुत ही कम शामिल करते हैं आमतौर पे, बिकॉज इट हैज वेरी वेरी लो रिएक्टिविटी. 2003 के अंदर ये बताया गया था. उसके बाद जो मेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट आगे वो कौन आगे, ग्रुप 16 में पोलोनियम हमने पहले बताया था, एटॉमिक नंबर 84. उसके बाद ग्रुप 17 का एस्टेटाइन, ग्रुप 18 का रेडोन. फिर हमने बताया कि आपके जो 4f ब्लॉक एलिमेंट है जो लैंथेनाइड, उसमें सिर्फ एक ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, दैट इज द प्रोमीथियम. जबकि 5f जो एक्टिनाइड है ऑल आर रेडियो एक्टिव, सारे के सारे आपके क्या है, रेडियो एक्टिव हैं. सो दीज आर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन आवर पीरियोडिक टेबल. नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिंथेटिक एलिमेंट, द एलिमेंट whose atomic number is greater than 92 including the technetium whose atomic number is 43 are called as the synthetic element. वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 92 से ज्यादा है वो सारे के सारे आपके सिंथेटिक एलिमेंट है, इंक्लूडिंग टेक्नीशियम विच इज प्रेजेंट इन द डी ब्लॉक, जो डी ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट है. उसके बाद नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आ जाती है, व्हाट आर द ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट. ट्रांस का मतलब बाद में, वो सारे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 92 से ऊपर है, जितने भी हैं सारे एलिमेंट, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट. So the elements whose atomic number is greater than 92 means atomic number 92 is the atomic number of uranium, so called as here the trans का मतलब बाद में, यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट, तो these called as the trans uranic elements. उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांस एक्टिनाइड्स. आपके ये वो एलिमेंट कौन होंगे, the elements having the atomic number greater than 89.
मीन्स एक्टिनाइड्स के बाद वाले जितने भी एलिमेंट है, मीन्स 89 के बाद वाले जितने भी एलिमेंट है, मीन्स 92 एंड अबो, ऑल कलेक्टिवली कॉल्ड एज द ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, आप उन्हें कह देते हैं। उसके बाद हमने ये कुछ एलिमेंट है, इनका आईपैक नेमिंग हम देखना चाहेंगे उन एलिमेंट का जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है, 100 से ज्यादा है। तो देखो कैसे बोलते हैं, ये बेसिक तरीका है जो आपको ध्यान रखना है। जैसे जो आपके 100 है, इसके अंदर 1 को क्या कहें, 0 को क्या कहें, 0 को क्या कहें, तो आगे 100 से अबो वाले ही देखने हैं, तो हम कैसे उनको उनकी नेमिंग करेंगे। तो देखो 0 हो तो नील वर्ड यूज करेंगे, नील। 1 है तो ऑन, 2 है तो बाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो क्वाड, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए एम। तो अब देखो अब हम नेम लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके 101 जो आपका एलिमेंट है उसका नाम कैसे लिखे हम, देखो 1 के लिए क्या लिखा हमने, बोलो 1 के लिए क्या कहना था यहाँ पे, यूएन अन, देखो हमने अन लिखा। 0 के लिए क्या कहेंगे, नील, देखो हमने नील लिखा। दोबारा 1 है तो क्या आ गया, फिर दोबारा से अन आ गया, और लास्ट में हमें क्या लगाना है, ईएम हमने लगा दिया। तो इस टाइप से हम लिखेंगे ऑन नील ओनियम, तो इसका नाम हो गया। सिमिलरली अगर हम 102 का लिखें तो देखो 1 का मतलब ऑन आ गया, 0 का मतलब नील आ गया, 1 के आगे 0 है, 2 का मतलब बाई आ गया, तो बीएम आपका बन गया, तो ऑन नील बीएम। अगर हम 103 का देखें इसी पैटर्न के ऊपर, तो देखो आप कैसे कहेंगे, 1 है तो अन आ गया, 0 है तो नील आ गया, 3 है तो ट्राई आ गया, तो ट्राई और आपके बन गया ट्रियम, तो क्या बन गया, उन नीलट्रियम। सिमिलरली अगर हम देखें 104, तो बोलो क्या कहेंगे, उसी टाइप से यू से अन बन गया, एन आई से नील बन गया, और 4 है तो क्वाड बन गया, क्वाडियम, तो क्या बन गया, अन नील क्वाडियम। तो इस टाइप से जो आईपैक नेमिंग है ये उन एलिमेंट्स के लिए हुज एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 100। तो इस टाइप से हमने देखा कि अपने जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स को किस तरीके से आप याद करें, क्या ट्रिक हो सकती है उनको याद करने की, प्लस उनके पीछे क्या क्या बेसिक थे, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन क्या आपसे पूछे जा सकते हैं एलिमेंट्स के बारे में, तो वो सारी चीजें हमने आज के लेक्चर में डिस्कस की। सो थैंक यू, दैट ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर, थैंक यू।